Hola my lovely children, welcome or welcome back to your very own YouTube channel. This is your educator Dia. Welcome back to the rapid revision series. So this video is basically a part 2 of the previous video of breathing and exchange of gases. So this is going to be a part 2 of breathing and exchange of gases. This is a continuation of the previous video. In the previous video we basically dealt with the introduction to breathing and exchange of gases. We discussed about the human respiratory system, the various types of respiratory systems involved, present in different groups of organisms. Then we came and we discussed about the human respiratory system, the various parts associated to the human respiratory system. Then in the concluding portion we also dealt with the mechanism of breathing, right? We discussed both inspiration and expiration at length, and not just that, we also discussed forceful breathing, right? So that's where we wrapped up the first part, and this video will be a continuation to that, right? So in this video we'll be covering the remaining portions of breathing and exchange of gases. We will be dealing with respiratory volumes and capacities, transport of gases, the sigmoid graph which is obtained, the disorders, the regulation of breathing, and everything in detail, right? So this video might be relatively longer than the previous one, but trust me, it'll be worth your time and attention, and you'll be able to say it for yourself. All you have to do is truly follow along, and trust me, you'll be able to say it for yourself. And in case you thoroughly enjoy the video, do let me know your valuable suggestions in the comments down below, and I'd be more than delighted to hear from your end. And in case you have some constructive criticism to offer, I'd be more than delighted to take that as well. Do let me know your suggestions in the comments down below. And now without any further ado, let's dive right into it and let's get started with respiratory volumes and capacities. Alright, तो देखो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था होल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन्स में होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, राइट? एनसीईआरटी में देयर वाज अ लाइन व्हिच कैटेगोरिकली सेड दैट द प्रेशर विद इन द लंग्स, राइट? देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट डू आई मीन बाय दैट लाइन? आई डिकोडेड दैट लाइन इन द प्रीवियस वीडियो. इट मेंट कि बेसिकली जो ऐसा नहीं है कि लंग्स में जो प्रेशर की वैल्यू वो नेगेटिव है. इसका मतलब है कि लंग्स में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर की कंपेरेटिवली कम है, विच इज़ वाई एयर इज मूविंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, राइट? एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की डायरेक्शन में मूव करती है. दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? तो ह्यूमन्स में जो होता है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, वेयर इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉग्स में होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. अब ये एक्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज एक्जैक्टली पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग? ये अतिरिक्त ज्ञान है, ट्रस्ट मी. Nobody is going to be asking you, but still to be on the safer side, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ द ब्लू, एक बहुत पहले, कई सालों पहले, ये किसी स्टेट पीएमटी में ये क्वेश्चन था कि in which of these organisms do you see positive pressure breathing? तो frog was one of the examples. तो just keep it in mind कि frogs जो होते हैं उनमें होती है positive pressure breathing. Exactly what is positive pressure breathing? You do not really have to go into the details, right? Just remember, humans में we have negative pressure breathing, frogs में we have positive pressure breathing. I hope that is clear to everybody. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ respiratory volumes and capacities की. अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, तो देखो ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा एक जैसी सांस ले रहे हैं, राइट? सो कब मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू गो आउट फॉर अ वॉक और यू गो फॉर अ रन, राइट? एंड यू गो फॉर अ रन और अचानक से उसके बाद क्या होता है, आपकी जो बेसिकली जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? वाई? बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, राइट? योर बॉडी नीड्स एनर्जी, योर बॉडी इज टायर्ड, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, राइट? आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है तो आप ज़्यादा गहरी सांसें लेते हो, राइट? यू टेक लॉन्गर ब्रेथ्स, राइट? लॉन्गर इनहेल्स, लॉन्गर एक्सहेल्स. और जब व्हेन वी आर स्लीपिंग एंड व्हेन वी आर नॉट रियली डूइंग सच इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़, तब हम रिलेटिवली तब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं, विच वी कैन हार्डली फील, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम टेकिंग दिस लेक्चर विद यू, आई एम ब्रीदिंग एंड आई डू नॉट इवन रियलाइज इट, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस, राइट? अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे होते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज. द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन डिफरेंट कंडीशन इज एग्जैक्टली व्हाट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. हम अलग अलग समय पे अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की सांस ले रहे हैं, ठीक है? उसे आप कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. और इन्हीं अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जोड़ के हमें मिलती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. सो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दे आर फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. सो वी कंबाइन डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स टुगेदर एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? देखो एक चीज़ याद रखना, एडल्ट्स में जो ब्रीदिंग रेट होती है, लाइक इफ लेट्स से अगर मैं जल्दी से रैंडमली किसी से पूछ लेती हूँ व्हाट इज़ द ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग, दे एंड अप सेइंग 72, राइट? बिकॉज हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियसली इतना फील हो गया है 72 टाइम्स इज द हार्ट बीट, इज द हार्ट रेट एंड नॉट द ब्रीदिंग रेट, राइट? तो जस्ट रिमेंबर, ऑल्दो आई एम श्योर बहुत बच्चों को एक्जैक्टली पता होगा, बट इट्स नॉट लाइक वो एक फंक्शनिंग हो गई है, कंडीशनिंग हो गई है, बिकॉज वी बिन लर्निंग दैट सिंस जूनियर ग्रेड, राइट? तो कहीं सबकॉन्शियसली फील हो गया कि जैसे ही उससे कोई रेट पूछता है, the first thing that strikes our brain is 72 times. So
तो नहीं, एक्चुअली में जो हमारी हार्ट रेट होती है दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। पर अगर मैं ब्रीदिंग रेट की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और स्पायरोमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से वी आर एबल टू measure the various respiratory volumes and capacities. So spirometer is actually a device which is used to measure the various respiratory volumes and various respiratory capacities except residual volume. स्पायरोमीटर बच्चा वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और अलग अलग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को मेजर करते हैं एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ RV and FRC, all the other respiratory volumes and respiratory capacities can be measured with the help of spirometer. This paragraph will actually make more sense to you, once we exactly try and understand कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, व्हाट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। जब एक बार हम वो समझ जाएंगे तो हमें एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्यों हम स्पायरोमीटर की मदद से सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट अ कपल ऑफ देम, ठीक है। व्हाई इज इट सो, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर ऑफ द व्हाई ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, एज यू गो अलॉन्ग इन द सेशन, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। अब बच्चा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम देखो, अभी आप लेट्स से आप नॉर्मली बैठे हो, राइट। अभी नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, राइट। नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। सो वे इनहेलिंग, वे एक्सहेलिंग, वे इनहेलिंग, वे एक्सहेलिंग, राइट। So the volume of air that a person is normally inhaling or exhaling without even putting any effort, that is tidal volume, ठीक है। नॉर्मली अभी बैठे बैठे let's say I'm speaking continuously और मैं अभी ऐसा तो नहीं है ना I've stopped breathing, right, you're constantly breathing, right। तो without any external efforts, कोई additional efforts के अलावा भी I'm able to breathe, right। तो मैं जितना एयर इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ नॉर्मली विदाउट इवन एनी एक्सटर्नल एफर्ट, राइट, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और देखिए दैट इज़ लाइक द सिंपलिस्टिक डेफिनेशन, ठीक है। तो और NCERT इसको कैसे डिफाइन करती है? NCERT इसको डिफाइन करती है, दिस इज़ लाइक ऑल्सो इंक्लूडेड द एग्जैक्ट लाइन्स फ्रॉम NCERT, ठीक है। मैंने तो आपको सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दी ही है, उसके अलावा ऑल्सो एडेड लाइन्स फ्रॉम NCERT, राइट, टू हेल्प यू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट बेटर। अब देखो NCERT एग्जैक्टली क्या बोलती है, अब ठीक है। NCERT बोलती है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। NCERT बोलती है कि आपने कितना एयर इनहेल किया या कितना एयर एक्सहेल किया ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेते समय, ठीक है, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू हैव इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज व्हाट NCERT डिस्क्राइब्स एज टाइडल वॉल्यूम। और आप समझ गए, आप नॉर्मली कितना सांस छोड़ ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने उसे एक एक्चुअली में ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज नॉर्मल इनहेलेशन, दिस इज नॉर्मल एक्सहेलेशन, दिस इज नॉर्मल इनहेलेशन, दिस इज नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो आप नॉर्मली कितना सांस ले रहे हो, दिस बिकम्स द टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है? 500 ml पर ब्रेथ, विच इज़ हाफ अ लीटर, राइट। आप हाफ अ लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हो पर ब्रेथ, राइट, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम, दैट इज गोइंग टू बी 500 ml per breath. Kindly make a note of it because this is one of the most frequently asked questions in the examination. In fact, all the volumes and their respective values have to be learnt. There's no two ways about it. Do not ask me how do I do it. There's no ifs and buts about it. You know, if you want to devise a mnemonic, kindly do that. Do whatever it takes, but remember and register the values in your head because this is one of the most frequently asked questions. Tidal volume is 500 ml per breath, ठीक है। तो 500 ml आप वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो पर ब्रेथ में, ठीक है। इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक एडल्ट की, तो अब जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, एक एडल्ट जो होता है ही और शी ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, राइट। एन एडल्ट ऑन एन एवरेज ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 बार सांस लेता है। एक एडल्ट जो है वो 12 से 16 बार सांस लेता है पर मिनट, राइट, ठीक है। एक ब्रेथ में 500 ml वॉल्यूम, एक ब्रेथ में 500 ml, ठीक है। एक ब्रेथ में 500 ml एयर ले रहा है, राइट। एक ब्रेथ में ही इज़ ब्रीदिंग इन 500 ml ऑफ एयर, राइट। ब्रीदिंग इन या ब्रीदिंग आउट 500 ml ऑफ एयर। तो 12 से 16 बार सांस ले रहा है वो एक मिनट में, ठीक है। तो 12 to 16 ब्रेथ में वो कितना सांस ले रहा होगा? अगर मैं 12 to 16 को मल्टीप्लाई करूँ 500 से, तो 12 5 60 और यहाँ 2 0, तो यहाँ 2 0 बिकम 6000, 16 5 80, सो यहाँ पे 2 0 और थे, वो 2 0 लगा दिए, विच मीन्स 8000। विच मीन्स अगर मैं बात करूँ, अगर वो एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है और अगर मैं 12 से 16 बार को मल्टीप्लाई कर दूँ 500 ml से, विच इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ, so that gives me a total of 6000 to 8000, which becomes the minute respiratory volume. Minute respiratory volume यानी एक मिनट में वो कितना इनहेल या एक्सहेल कर रहा है एक मिनट में। 500 ml पर ब्रेथ, बट एक मिनट में अगर वो 12 से 16 बार सांस ले रहा है, तो 12 से 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 500 से, आई गेट 6000 से 8000, यानी 6000 to 8000 ml पर मिनट, एंड दिस इज रेफर टू एज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ऑल्दो NCERT ने टर्म यूज़ किया है पर एग्जैक्टली ये डेफिनेशन नहीं दिया। आई होप दैट इज। तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम
जो भी टाइडल वॉल्यूम था इनटू द ब्रीदिंग रेट, टाइडल वॉल्यूम इनटू द ब्रीदिंग रेट विल एक्चुअली गिव यू द मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, अब वी डन विद टाइडल वॉल्यूम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच्चा होता है द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड या इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर इनहेलेशन. ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हम एडिशनली कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मल इनहेलेशन के बाद. तो देखो लेट्स से ये रहा, मैं नॉर्मली इनहेल कर रही हूँ, मैं नॉर्मली एक्सहेल कर रही हूँ, मैं नॉर्मली इनहेल कर रही हूँ. अब ये नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैं एडिशनली कितना इनहेल कर सकती हूँ. नॉर्मली इनहेल करने के बाद मैं और एक्स्ट्रा भी तो इनहेल कर सकती हूँ. लेट्स से सडनली आई एम नॉर्मली इनहेलिंग. ठीक है, अब मैं एक डीप इनहेल लूँ, राइट. आई कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आई एम टेकिंग इन. ठीक है, तो मैं एडिशनल कितना एयर इनहेल कर सकती हूँ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इनहेलेशन, दैट इज रेफर टू एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये देखो ये बन जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये तो था मैं नॉर्मली कितना इनहेल कर सकती हूँ. नॉर्मली के बाद ये मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो इनहेल कर रही हूँ, दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच्चा क्या होता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड या इनहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, राइट. नॉर्मल इनहेलेशन के बाद ये नॉर्मली इनहेल किया, नॉर्मली इनहेल किया, नॉर्मली एक्सहेल किया. नॉर्मल इनहेलिंग के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैं फोर्सफुली कितना और एयर इनहेल कर सकती हूँ, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, दैट्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और एनसीईआरटी कैसे डिस्क्राइब करती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का. एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन्स हैं ये वाली द वन दैट आई हैव रिटन इन येलो इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, राइट. So NCERT describes inspiratory reserve volume as a person can inspire by forceful inspiration. Inspiratory reserve volume as per NCERT is the volume of air a person can inspire by forceful inspiration, right? फोर्सिबल इंस्पिरेशन से नॉर्मली वो जितना इनहेल कर रहा है वो तो ठीक है. उसके अलावा वो फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकता है, राइट. द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और बच्चा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2500 से 3000 ml है, 2500 ml to 3000 ml. इट्स 2500 ml to 3000 ml. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इतना सबको समझ में आया. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नथिंग बट द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड. ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, राइट, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. इतना सबको समझ में आ गया. ठीक है, उसके बाद लेट्स जस्ट ट्राई एंड डिस्कस दिस फर्दर. ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर. ठीक है बच्चा, तो नाउ लेट्स एक्चुअली डिस्कस अबाउट द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब विल एक्चुअली डिस्कस अबाउट द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूँ तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, अब देखो मैं नॉर्मली कुछ एयर को इनहेल कर रही हूँ, मैं नॉर्मली कुछ एयर को एक्सहेल कर रही हूँ, राइट. आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सहेलिंग, आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सहेलिंग, राइट. अब नॉर्मली मैंने इनहेल करा, फिर एक्सहेल करा, फिर मैंने इनहेल करा, फिर मैंने एक्सहेल करा. अब नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद मैं और एडिशनली कितना ज़्यादा एक्सहेल कर सकती हूँ. द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आई कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, दैट इज़ रेफर टू एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, मैं एडिशनली कितना ज़्यादा एयर बाहर निकाल सकती हूँ. ठीक है, अब जैसे नॉर्मली इनहेल एक्सहेल तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप देखो अगर आप इफ़ यू ट्राई एंड प्रेस योर लंग्स, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हो. तो वही एडिशनली देखो नॉर्मली मैं इतना तो कर रही हूँ, टाइडल वॉल्यूम, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, बट ये देखो एक्सहेल हुआ, नॉर्मल एक्सहेल हुआ, नॉर्मल एक्सहेल के बाद आप